Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. Today we are going to do the chapter of social science and highlighting each and every point of it. Let's see what is our topic today. Next topic is here the Maurya age. Maurya is the most important period time here. Their time here 322 BC to 184 BC. There is the most important period time here Maurya age. Out of 16 Mahajanpad, there out of 16 Mahajanpad, it was a Magad that expanded to considerably under a powerful rule like is a Bhimsar. Bimbusar, there is the most important on this period time here. Ajasatru and Mahapadmananda, there is a last king of the Nanda then century was affected by the Chandragupta Maurya in 322 BC. There is the most important here Bimbusar and Ajasatru and Mahapadmananda. There is the last king of the Nanda the centuries here. And Chandragupta Maurya established here 322 BC. And he established the Maurya Empire, uprooting a Greek form of Punjab is the Nandas from to the Gangatri plants here. By the continued process of conquest and extensions, he was able to unify almost the whole of India. Chandragupta ruled from to the 322 BC to 297 BC. There is a most important period time here. He embraced the Jainism under the influence of here Bahadru Bahu. Badru Bahu is a die at the Sirvanbengaloga near Mysore. That is important here. Bindusara here 297 BC to 272 BC. Bindusara is a period time here 297 BC to 272 BC. The son and successor of Chandragupta Maurya was also now as a Mitragarda is a layer of the enemy. And he is said to be inquired to the Deccans, extending a Maurya control as far as Mysore. He also had a contact with the Antiochus is one the Greek ruler of West Asia. It appears from the Buddhist literature that after the death of the Bindusara, there was a struggle from the throne as among his son. And the next year, Asoka. Asoka here, 272 BC, there are 236 BC. There is the most important period time here. Asoka emerged victorious in this the Fischidal's War of Succession and ascending their throne of Magad. An important event this the resign was the famous Kalinga War in here 260 BC. Kalinga is but there is the most important the mention in his rock edit is 8. Later Asoka is embarrassed the Buddhism and give up a war. Give up a war. He was when involved in the ruler and did not is many things for there is the welfare of his this subject. And his policy of the Dhamma was based on religious restoration and respect to the elder, care for the older, and kindness, truthfulness, and purity. It was thought the effort of Buddhism spread beyond to the boundaries of India. The rock edict of the pillar, written inscribed by him, give a detailed account of his reign. After the Ashoka as a death, his empire was disintegrated into the species. There was also a dangerous of foregone inventions. The economical condition of country is noted. The last king of the Maurya dynasty is the Bhimdranatha. The Bhimdranatha is the most important here. Here show the most important Soka time has map here. There is a major rock edict here and pillar edict, minor rock edict and temoted limit. There is the most important in this show in this map. That is important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मौर्य काल, देखिए यहाँ मौर्य काल के विषय में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ मौर्य काल के अंतर्गत, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। यदि हम बात करें मौर्य काल की तो कहते हैं बिंदुसार अजातशत्रु और महाजनमानाद जैसे ताकतवर शासकों के अंतर्गत मगध साम्राज्य का जो है बहुत विस्तार हुआ। यानी बिंदुसार ने
काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया मौर्य जो है साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। नंद वंश के अंतिम राजा को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में परास्त कर दिया था, यानी धनानंद था। चंद वंश के जो आखिरी राजा था धनानंद था। धनानंद देखा जाए तो बहुत क्रूर था और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के जो है कूटनीतियों से जो है इसको परास्त कर पाया और ये भी जो है 322 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त ने पंजाब में यूनानियों को और गंगा के मैदानी जो है इलाकों में नंदों को जो है भगाकर मौर्य को साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल किया था। विजय और विलय की एक समस्त प्रक्रिया से यह लगभग संपूर्ण भारत के एकात्मबंध करने में कामयाब भी रहा। चंद्रगुप्त ने जो है 322 ईसा पूर्व में से लेकर 297 ईसा पूर्व तक राज्य किया, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण पीरियड टाइम था यहाँ पर जहाँ पर जो है चंद्रगुप्त ने राज्य किया। कहते हैं भद्रबाहु के प्रभावित होकर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और उसका जो है निधन मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में हुआ। तो ये उसका जो है अंतिम जीवन था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद जो है मौर्य वंश और भी स्टेबलेट हुआ। चंद्रगुप्त को प्रसिद्ध दार्शनिक और जो अध्यापक आचार्य चाणक्य के प्रशिक्षण दिया था। चाणक्य जो थे जिसके हम चंद्रगुप्त को जो है काफ़ी शिक्षा दिया था। चाणक्य जो कूटनीतियों के लिए काफ़ी विख्यात थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य काफ़ी सक्षम थे हर चीज़ों में और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। कौटिल्य के जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो है ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कालजयी कृति माना जाता है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। चाणक्य कूटनीति के कारण जो है चंद्रगुप्त सफल शासक बन सका और चंद्रगुप्त का जो है मेन गुरु जो थे चाणक्य थे, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शासन यहाँ पर कर सके। चंद्रगुप्त का बेटा और उत्तराधिकारी बिंदुसार, देखिए चंद्रगुप्त का बेटा उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जिसकी जो है राज अभिषेक कहते हैं 297 ईसा पूर्व से लेके जो है इसका राज्य काल 272 ईसा पूर्व तक था। और कहते हैं अभिमित्र घाट यानी शत्रुदंता के नाम से भी ये जाना जाता है, यानी बिंदुसार को जो है हम जो है अमृत घाट या शत्रुहंता के नाम से भी जानते हैं। और कहते हैं कि अपने दक्कन जीत कर मौर्य साम्राज्य की जो है मैसूर तक पहुंचा देने वाले जो है बिंदुसार ही था। पश्चिमी एशिया की यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम के साथ उसके संपर्क थे और बौद्ध साहित्य के ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की मौत के बाद उसके बेटे के बीच सत्ता का संघर्ष होता रहा। इसमें बहुत से जो है दंत कथाएँ हैं इसके अंतर्गत। कहते हैं अगर आगे देखिए उत्तराधिकारी के इस युद्ध में अशोक ने जो है 272 ईसा पूर्व से लेके जो है 236 ईसा पूर्व तक विजय होकर जो है मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ, यानी अशोक ही बिंदुसार के पुत्रों में सबसे आगे था। कई जगह तो इतिहास ये भी बात बताती है कि अशोक ने अपने भाइयों को कत्ल करके जो है राजगद्दी अपनाया था, लेकिन कहते हैं जो है शिलालेखों का जो है ख़त्म हो जाने और जो है म्यूजियम में आग लग जाने के कारण जो है इसके सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब नष्ट हो गए। तो इसलिए अशोक के बारे में हमें जितने भी जानकारी अभी मिल रही है वो बौद्ध साहित्य से ही मिल रही है। तो यही बात अशोक के बारे में बताया गया है कि उसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो 260 ईसा पूर्व में हुआ, कलिंग का युद्ध। कहते हैं कई जगह तो ये बात दर्शाई गई है कि अपने भाइयों को वो कत्ल करके जो है राजगद्दी हासिल किया था, और कई जगह ये बात पर भी चर्चा है कि कलिंग युद्ध जो हुई थी उसमें जो है पत्थरों पर खुदवाया अशोक ने जो है तस्वीर अशोक में जो है इसका जिक्र भी है। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और युद्ध का जो है परित्याग कर दिया। कारण था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में जो है बहुत नरसंहार हुए, जिसको खून खराबा को देख कर अशोक जो है काफ़ी विचलित हो गया और इसके कारण जो है उसने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके जो है युद्ध को उसने सदैव के लिए परित्याग कर दिया। तो कहते हैं कई कथाएं हैं जिसके बारे में यहाँ पर क्या सत्य है इसके बारे में किसी भी जो है थिंकर्स को पता नहीं है। वह एक परोपकारी राजा था और उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए ढेर सारे काम भी किए। इसमें से सबसे प्रमुख था धम्म। धम्म का जो है विशेष अपना स्थान रखता है अशोक के जीवन में। कहते हैं उसकी नीति धार्मिक सहिष्णुता, बड़े की इज्जत, बूढ़े की देखभाल, दया, सत्य और शुद्धता पर आधारित थी और सारी बात जो है धम्म में उसने प्रस्तुत किया था। उसके प्रयासों में बौद्ध धर्म भारत की सरहदों को पार भी फैल गया और चट्टानों और स्तंभ पर उसके आदेश उसके शासन का विस्तृत ब्यौरा मिलता है।
कहते हैं धम्म में जो था वो जितने भी उपदेश थे वो जो है बड़े बड़े शिलालेखों स्तंभों में उड़ेका करता था। इसी को जो है धम्म के नाम से जाना जाता है। और धम्म में जो है मैक्सिमम जो है उसकी धार्मिक नीतियों का ही जो है बखान किया गया है। और इस बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है मैप भी पर्याप्त है। आप मैप में देख सकते हो भली भांति कि यहाँ पर जो है प्रमुख शिलालेख जो है आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा, ट्रायंगल शेप में जो है स्तंभ शिलालेख, और वाइट जो है स्क्वायर में आपको जो है लघु शिलालेख दिख रहा होगा। डॉट डॉट शेप आप जो दिख रहे हैं आपको चारों तरफ, वो राज्य क्षेत्रीय सीमाएं हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक ने जो है हर एक क्षेत्र में जो है अपना राज्य स्थापित करने में बखूबी कामयाब भी हुआ। और ये मैप जो है बिल्कुल साफ दर्शा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कहा जाता है कि अशोक की मौत के बाद उसके साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि अशोक एक ऐसा राजा था जिसने सारे राज्यों को जो है एक करके रखा था। लेकिन उसकी मौत के बाद जो है राज्य साम्राज्य का जो है टुकड़ा टुकड़ा हो गया। और उस समय विदेशी हमले का भी डर लगा रहता था। देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। और मौर्य वंश का अंतिम राजा जो कहते हैं वसहरथ कमज़ोर शासक था। वसरथ जो था बहुत काफ़ी कमज़ोर था और वहाँ पर विदेशी आक्रमण ने इसको जो है तहस नहस करके रख दिया। उसके महत्वाकांक्षी जनरल पुष्यमित्र शुंग ने जो है 1084 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी। किसकी? वसहरथ की, जो कि आखिरी जो था मौर्य वंश का शासक था। और उसको जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसको 184 में जो है हत्या कर दी। और मौर्य शासन के बाद पूर्व भारत में शुंग और दक्कन में सातवाहन शासन हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था।